चिल्ला चिल्ला के मैं ये सबसे कह दूं, रखो है ये रुत का इशारा, रखो हर लम्हा ठोकरा। I am a person, it's very easy for me to make people laugh, to bring a smile on your face. See, you are blushing right now. If somebody is bullying of me something, in case, I'm fine. I know who I am. If people think that I am not good, it's not my problem. I am snoring full on. और मुझे फ़ोन कॉल आता है और आयुष्मान का फ़ोन था, आयुष्मान खुराना। मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं था कि 16 साल के बाद भी जब मेरा ऐसा कमबैक होगा तो लोग मेरे को like they will be appreciating me in this way, you know. It's an achievement for me that there is somebody called Hamna who is like a great personality from Brute India is interviewing me. Hello everybody, this is Devashi Patel for Brute. I will first start with Roadies, which is why we're here today. So tell me how that audition was, and was it at all scripted? Not at all, not at all. It was 100% real. Roadies is real, you know. They don't tell you what to do, they don't tell you how to do. The way it is, like you go for an organic audition. I was never having that plan in my mind that I want to be a roadie. One day I was like about to get ready. Suddenly I got an announcement from the radio that today आज रोडीज के ऑडिशंस अहमदाबाद में हो रहे हैं, अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप आ जाइए। मेरे को ये भी पता नहीं था कि रोडीज में अगर आपको जाना है ना तो यू हैव टू क्लियर अ प्रोसेस विच इज़ कॉल्ड अ जीडी कॉल ग्रुप डिस्कशन। आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ दैट। मैं पहुंच गया और मेरा सीधा मैं घुसा वो गेट के पास, तो सिक्योरिटी मेरे को रोका कि मैं जा रहा था अंदर। आई वॉज यू नो लाइक यंग ब्लड एट दैट टाइम, 21 years फुल ऑन एनर्जेटिक, आई एम स्टिल द सेम। मैं गया तो सिक्योरिटी गार्ड ने बोला कहाँ भैया, मैंने बोला रघु को मिलना है, ऑडिशन चल रहे हैं। सिक्योरिटी हंसने लगा, मेरे को बोला बेटा ये लाइन दिख रही है आपको लंबी, उसमें लगो, पहले ग्रुप डिस्कशन होगा, वो सिलेक्ट होगा तो नेक्स्ट डे आपको यू विल बी एबल टू सी देम। और आई थिंक अराउंड 10,000 जितना क्राउड तो होगा, क्योंकि रोज उस टाइम पे यू नो हाउ क्रेजी पीपल वॉज फॉर रोडीज बॉस। मैं लाइन में जाके खड़ा हुआ, ऑल आई वॉज हैविंग वॉज वन वाटर बॉटल विद मी। It took me 8 hours to go through the group discussion. What I feel कि मेरा सिलेक्शन के पीछे the most important that apart of my talent and all, I was me. जब फॉर्म भी लिखा ना, फॉर्म में एक क्वेश्चन था कि फॉर एग्जाम्पल ऐसे कुछ कंट्री था, इटली या जापान का प्रेसिडेंट क्या है, तो वो टाइम पे मैंने गूगल करके उनको जवाब दिया और मैंने ब्रैकेट में लिखा कि आई डिडंट नो, आई गूगल्ड इट अप। ये एक्चुअली अहमदाबाद में सबसे इंटरेस्टिंग आदमी है। And did you expect कि आप रियल होने से आपको एंट्री मिल जाएगी इन द शो? नहीं, इट इज़ वन ऑफ द फैक्टर्स, सी अंडरस्टैंड, इट इज़ वन ऑफ द फैक्टर्स। एंड व्हाट आई फील इज, यहाँ पे बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं आज भी कि यार देवर्षि आप तो बहुत लकी हो कि आप रोडीज में आपको एंट्री मिल गई और आप रोडी बन गए। I tell you Hamna, now I have my own brand which is called Devkados and I am an inspirational comedian. I want to know what is an inspirational comedian? Inspirational comedian, yeah, there you go. See, there are inspirational people, inspirational speaker across the globe, a lot of motivational speaker, right? That is there, and secondly, comedians are there. So I am a person, it's very easy for me to make people laugh, to bring a smile on your face. See, you are blushing right now. You get what I'm saying? So I thought of a fusion, inspiration plus comedy. You getting my point? When did you realize you can make people laugh easily, and why do you think you can do that? Because I'm just being myself. You know, I'm a fun-loving guy and I love to interact with people. For example, in my spare time, I don't watch TV or I don't watch movies. I would rather go to chill with my friends, have a good time, make people laugh, crack jokes. And you know, when I bring smile or when I do good, I represent kindness. So human to human, when I do something good for any other human,
I really feel good from bottom of my heart and I feel proud of myself. वापस उस दिन पे जाते हैं जब आपने 8 घंटे लाइन में खड़े होके आपने क्लियर करा. ग्रुप डिस्कशन में क्या टॉपिक था? Something was related to relationship. जैसे टॉपिक दिया ना, I was talking in accent. I totally like, I don't know what happened to me because I'm good with, accent and I started communicating with, hey people, I'm Devashi, this and that. फिर अचानक से थोड़ा डिबेट बढ़ा और then somehow one guy abuses or something like that. और वहाँ पे राजीव was there. तो हमको ब्रीफ दिया गया था कि ये जो ग्रुप डिस्कशन में इसमें आप लोग यू कैन नॉट अब्यूज एनीवन एंड यू कैन नॉट हिट एनीवन, रेस्ट यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट. तो वन गाय जस्ट रैंडमली, नॉट मी बट ही वाज जस्ट पुटिंग इन हिज पॉइंट और ही जस्ट रैंडमली लाइक यूज सम अब्यूजिव वर्ड. तो फिर मैंने उसको आई जस्ट स्टॉप्ड हिम एंड आई टोल्ड हिम कि देख भाई, जब ये ग्रुप डिस्कशन चालू हुआ था आपको बोला गया था स्पेसिफिकली सबको कि भाई ये ऐसे आप लोग नहीं कर सकते और आपने ये किया. तो अगर आपको अभी सेल्फ रिस्पेक्ट है और आपको अगर कॉन्फिडेंस है तो आप एक काम करो, आप ये हॉल छोड़ के आप बाहर चले जाओ क्योंकि आप यहाँ पे रहना डिजर्व नहीं करते. एंड दैट गाय वॉकड ऑफ. सो दैट लाइक समथिंग लाइक पीपल वर लाइक impressed or whatever you say. And then I was so tired, so I didn't even wait for the announcement. वहाँ पे जो बोर्ड लगता है ना एंड में कि चलो दिस आर द शॉर्ट लिस्टेड, जीडी खत्म करके आई वेंट टू अ होटल. आई स्टिल रिमेंबर आई हैड अ नाइस वेज क्लब सैंडविच. आई वेंट होम एंड आई स्लेप्ट. 10 से 11 के बीच में आई एम स्नोरिंग फुल ऑन और मुझे फ़ोन कॉल आता है और लकीली मैंने उठाया और आयुष्मान का फ़ोन था, आयुष्मान खुराना से देवर्षि. मैंने बोला यस. बोले आयुष्मान खुराना हियर फ्रॉम रोडीज एंड आई एम लाइक ये आयुष्मान टेल मी मैन. आयुष्मान खुराना वाज होस्टिंग द ऑडिशन दिस टाइम. तो मेरे को तो समझ में आ गया कि भाई मैं सिलेक्ट हो गया हूँ. आई गॉट अ क्लिक कि आयुष्मान का फ़ोन तभी आया होगा. तो ही सेड बॉस यू आर सिलेक्टेड, यू हैव टू कम टू दिस होटल फॉर योर पर्सनल इंटरव्यू. आई सेड ओके बडी, आई विल सी यू टुमारो. 11 बजे का कॉल था मेरा. 10 बजे मैं तो फुल ऑन फॉर्मल शर्ट बट पहन के पहुंच गया. एंड देन यू हैव सीन द ऑडिशन एंड देन सो ऑन, रेस्ट इज द हिस्ट्री. ऑडिशन में नर्वस थे आप? नॉट एट ऑल. आई वाज सो एक्साइटेड टू सी रघु एंड राजीव. माय ड्रीम केम ट्रू बॉस. आपके लिए क्या हाईलाइट वाले मोमेंट्स थे? हाईलाइट वाले तो जो हमने रॉक ऑन का गाना गाया था. आपने देखा है मेरा ऑडिशन पूरा? ऑफ कोर्स. या रॉक ऑन का गाना गाया था ना मैंने, रॉक ऑन. या डेफिनेटली, व्हाई नॉट, आई कैन डू दैट. रॉक ऑन है ये वक्त का इशारा, रॉक ऑन हर लम्हा पुकारा, रॉक ऑन यूं ही देखता है क्या तू, रॉक ऑन जिंदगी मिलेगी ना दोबारा. Did you think in that moment that this is something that is going to stay in people's memories forever? No. I was just having a good time. I was having no clue that, I so blessed that today it's an achievement for me that there is somebody called Hamna who is like a great personality from Brute India is interviewing me and asking me for all these questions. So it's an achievement. And आप मेरे इंस्टाग्राम पे देखोगे जो मैंने पॉडकास्ट किए हुए हैं उसमें लोग दे आर लाइक गोविंदा 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 रॉक ऑन गोविंदा रॉक ऑन. मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं था कि 16 साल के बाद भी जब मेरा ऐसा कमबैक होगा तो लोग मेरे को लाइक दे विल बी अप्रिशिएटिंग मी इन दिस वे, So yeah, it's a pleasure and I'm happy that I am able to bring smile and laughter to the people. कोई लोग आपको ऐसे आमने सामने मिलके कभी हुआ है कि पहचान गए हैं? हाँ, बहुत उस टाइम पे तो बहुत था. और अक्रॉस इंडिया मेरे को अभी भी आउट ऑफ कंट्री से मैसेज आते हैं. आपका एक सेंटेंस था रोडीज के ऑडिशन में कि आई एम दैट टाइप ऑफ पर्सन कि अगर रास्ते में कोई आदमी मुझसे पेन मांगेगा तो वो मुझे भूलेगा नहीं. क्या आपको लगता है वो सेंटेंस एक तरह की फोरशैडोइंग थी? अभी भी मेरे को मैसेज आते हैं कि मेरी पेन वापिस कर दो. लोग मेरे को फोन करके बोलते हैं कि भैया पेन लौटा दो. फिर मैं मस्जिद में बोलता हूँ कि यार श्योर, कैन यू रिमाइंड मी विच ब्रांड इट वाज, सो आई विल, इवन इफ आई डोंट हैव, आई विल बाय एंड गिफ्ट इट टू यू.
जो ऑडिशन चल रहा था, it started on a quite a light note and then it gets really intense, right? आपके performance के बाद, and you know you're getting harsh reviews from Raghu and Rajiv, and I could see when I was rewatching it that your face kind of dropped a little bit, and then you're trying to you know just be present there. क्या कुछ भी याद है उस वक्त क्या चल रहा था दिमाग में? नहीं वो I tell you वो क्या होता है, see tell you, it's their what they do. Apart of your qualities and all, they try to little bit test ke how when somebody puts a mental pressure in you or how do you react to the situation, and then they take a call as per the requirement of a particular contestant. और वो फिर सोचते हैं कि ये कलेक्टर को अगर हम रोडीज पे ले गए तो किस तरीके से वो रिएक्ट कर सकता है या कर सकती है. And I am like person, I am like very cool and calm. If somebody is bullying of me something in case, I'm fine. I know who I am. कभी कोई हुआ है पर्सनल एक्सपीरियंस बुलिंग के साथ? Not like face to face, but like there are some few comments come on my YouTube or something, you know, like anything. If this is this and that. If people think that I'm not good, it's not my problem. People are people. It's their duty to say positive and negative. But when I see a negative comment, I just ignore them. रोडीज के बाद आपकी लाइफ चेंज हुई? Yeah, definitely, 100%. मैं अभी ये बात पे बात करते हैं कि रोडीज ने मेरे को कैसे बदला. उसमें क्या होता है, देखो बहुत सारी चीज़ें ना रोडीज में आपको अपने बारे में सिखाती है जो आपको पता ही नहीं है. समझ रहे हो मेरे अंदर क्या स्ट्रेंथ है और क्या वीकनेस है, जिसको किस स्ट्रेंथ को मुझे आगे लेके जाना है और किस वीकनेस को मिटाना है, वो मेरे को रोडीज ने सिखाया मेरे लाइफ में. अच्छा, आप सिर्फ 21 इयर्स के थे जब आप रोडीज गए? या आई वाज 21. आपने क्या पढ़ाई करी हुई थी? I did my BCom, and then after I went and then रोडीज हुआ, फिर then I went for मुंबई. वहाँ पे मैंने वीडियोकॉन का एक ऐड किया था. I did few short films for MTV also. At that time I shot with Ayushmann Khurrana also. What did you do between that time and now? That time to now मेरा I was like I did my MBA in marketing, okay, and I was so good in communication that उसके पहले भी मैं काम करता था, रोडीज के बाद भी मैंने अपना करियर परस्यू किया, एंड या मार्केटिंग एंड रिक्रूटमेंट एंड ऑल आई डिड. मतलब आपने कॉर्पोरेट जॉब करी? हाँ, आई डिड. Then did you quit it? Yeah, I mean because you know I am also having my digital marketing agency right now. जिस तरह लोगों ने आपको रोडीज में देखा, and when you meet them in real life, do they come with any perceptions about you? Yeah, I mean perceptions तो होते ही है, but they were very curious to know me. कि भाई आपने तो सबसे पहले मेरे को क्वेश्चन पूछा कि इज रोड इज रियल और नॉट, हाउ वाज द जर्नी. सो एज अ फैन और एज अ पर्सन दे ट्राई टू मिंगल अराउंड विद मी, दे वांट टू अंडरस्टैंड मी एंड दे वुड लाइक टू बी फ्रेंड विद मी, एंड आई एम ओके विद इट. तो रोडीज के बाद तो आपको काफी अटेंशन मिला था, एंड देन एट सम पॉइंट व्हेन यू स्टेप्ड अवे फ्रॉम द लाइमलाइट थोड़ा अटेंशन कम हुआ होगा. सो how did you cope with that? Did it affect you in any way? No, not at all. Totally cool with it. मुझे पता था कि भाई चलो अभी मैं मेरा जॉब पर करी, लेकिन होता था क्या था, जहाँ पे भी मैं मतलब माई थ्रू आउट माई करियर आई यूज टू हैव गुड फ्रेंड्स एट माई वर्क प्लेस, सो आई यूज टू एन्जॉय विद देम. मेरा ये नहीं है कि भाई मेरे को इतना अटेंशन चाहिए ही चाहिए ऑलवेज. इट वॉज लाइक नॉट लाइक दैट. मेरे को अगर इफ आई एम लाइक आई एम ओके विथ गोइंग टू 5-star फॉर डिनर, आई एम ओके स्टैंडिंग अलोन एंड हैविंग अ टी एट अ टपरी. सो वो इशू कभी आया नहीं है कि भाई चलो अटेंशन नहीं मिल रहा है, क्या करना चाहिए. नो, दैट इज फाइन. Don't forget to subscribe and follow us.